Hello, everyone. Welcome to another episode of Legal Update. The topic of today's discussion is High Courts can quash DV complaints. Why in news? Recently, in Saurabh Kumar Tripathi versus Vidhi Rawal case, the Supreme Court allowing high courts to quash complaints filed under Section 12 of the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 using their inherent powers under Section 482 of the CRPC, Section 528 of the BNSS. Background of the case. Section 12, subsection 1 of the Domestic Violence Act 2005 empowers aggrieved women to file complaints before magistrate courts regarding domestic violence. Some high courts had earlier taken a view that powers under Section 482 CRPC cannot be used to quash these complaints because proceedings under Section 12, subsection 1 are predominantly civil in nature. This created conflicting judicial opinions, with some courts refusing to entertain quashing petitions against DV complaints. The Supreme Court examined whether high courts could use their inherent powers to prevent abuse of legal process in such cases. The court also reviewed past judgments, including a prior contrary view by a full bench of Bombay High Court. Court observation. A bench comprising Justice Abhay S. Oka and Justice Ujjal Bhuiyan observed that the power of high courts under Section 482 CRPC, Section 528 BNSS can be exercised to quash proceedings arising from Section 12, subsection 1 of the DV Act to prevent abuse of process or secure justice. However, the high courts must exercise this power with great caution and restraint due to the welfare nature and object of the DV Act. Interference should be only in cases of gross illegality or abuse of the process of law. The court emphasized a hands-off approach to ensure the DV Act's objective of protecting women from domestic violence is not violated. Legal provisions involved. Section 12 of the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 deals with the application to magistrate. Subsection 1 states that an aggrieved person, protection officer, or any other person acting on their behalf can file an application to the magistrate requesting reliefs under the Act. Before issuing any order, the magistrate must consider any domestic incident report received from the protection officer or service provider. Section 482 of the Code of Criminal Procedure 1973, Section 528 of BNSS 2003 deals with the saving of inherent powers of High Court. It states that nothing in this Sanhita shall be deemed to limit or affect the inherent powers of the High Court to make such orders as may be necessary to give effect to any order under this Sanhita or to prevent abuse of the process of any court or otherwise to secure the ends to justice. Now is time for today's practice question. What is the main purpose of Section 482 CRPC, Section 528 BNSS? A. To allow appeal against magistrate's order. B. To limit the jurisdiction of lower courts. C. To preserve the inherent powers of the High Court to prevent abuse of court process and secure justice. And D. To establish new courts. Send us your answers in the comment section. Thanks for watching. उच्च न्यायालय घरेलू हिंसा की शिकायतों को रद्द कर सकते हैं। चर्चा में क्यों? हाल ही में सौरभ कुमार त्रिपाठी बनाम विधि रावल मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालयों को सीआरपीसी की धारा 482, बीएनएसएस की धारा 528 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 12 के तहत दायर शिकायतों को रद्द करने की अनुमति दी। मामले की पृष्ठभूमि। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 12 उपधारा 1 पीड़ित महिलाओं को घरेलू हिंसा के संबंध में मजिस्ट्रेट अदालतों में शिकायत दर्ज कराने का अधिकार देती है। कुछ उच्च न्यायालयों ने पहले यह माना था कि धारा 482 सीआरपीसी के तहत शक्तियों का उपयोग इन शिकायतों को खारिज करने के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि धारा 12 उपधारा 1 के तहत कार्यवाही मुख्य रूप से सिविल प्रकृति की होती है।
इससे विरोधाभासी न्यायिक राय पैदा हुई और कुछ न्यायालयों ने घरेलू हिंसा की शिकायतों के विरुद्ध याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात की जांच की कि क्या उच्च न्यायालय में ऐसे मामलों में कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए अपनी अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। न्यायालय ने पिछले निर्णयों की भी समीक्षा की, जिसमें बॉम्बे उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा पहले दिया गया विपरीत दृष्टिकोण भी शामिल था। न्यायालय की टिप्पणी। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की पीठ ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 482, धारा 528 बीएनएसएस के तहत उच्च न्यायालयों की शक्ति का प्रयोग डीवी अधिनियम की धारा 12 उपधारा 1 से उत्पन्न कार्यवाही को रद्द करने के लिए किया जा सकता है, ताकि प्रक्रिया का दुरुपयोग रोका जा सके या न्याय सुनिश्चित किया जा सके। हालांकि डीवी अधिनियम की कल्याणकारी प्रकृति और उद्देश्य के कारण उच्च न्यायालयों को इस शक्ति का प्रयोग बहुत सावधानी और संयम के साथ करना चाहिए। हस्तक्षेप केवल घोर अवैधता या कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के मामलों में ही किया जाना चाहिए। न्यायालय ने घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए घरेलू हिंसा अधिनियम के उद्देश्य का उल्लंघन न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए किसी भी तरह से हस्तक्षेप न करने के दृष्टिकोण पर जोर दिया। इसमें शामिल कानूनी प्रावधान। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 12 मजिस्ट्रेट को आवेदन करने से संबंधित है। उपधारा 1 में कहा गया है कि पीड़ित व्यक्ति, संरक्षण अधिकारी या उनकी ओर से काम करने वाला कोई अन्य व्यक्ति अधिनियम के तहत राहत का अनुरोध करते हुए मजिस्ट्रेट को आवेदन दायर कर सकता है। कोई भी आदेश जारी करने से पहले मजिस्ट्रेट को संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता से प्राप्त किसी भी घरेलू घटना की रिपोर्ट पर विचार करना चाहिए। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 482, बीएनएसएस की धारा 528 उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों की बचत से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि इस संहिता में कोई भी बात उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को सीमित या प्रभावित करने वाली नहीं मानी जाएगी, जो इस संहिता के तहत किसी आदेश को प्रभावी करने या किसी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक आदेश देने के लिए आवश्यक हो सकती हैं। और अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। धारा 482 सीआरपीसी, धारा 528 बीएनएसएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. मजिस्ट्रेट के आदेश के विरुद्ध अपील की अनुमति देना। बी. निचली अदालतों के अधिकार क्षेत्र को सीमित करना। सी. न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने और न्याय सुनिश्चित करने के लिए उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को संरक्षित करना। या डी. नए न्यायालयों की स्थापना करना। अपना उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। देखने के लिए धन्यवाद।